राइटर के हिसाब से रोने वाला सीन बहुत बार हो चुका है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए शायद इस बार रोने वाले सीन को डाला नहीं गया। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਤਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ अत्याचार किया नाल भी वो देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए। मणिपुर ही ला लो तुसी, मणिपुर दे बारे अज तक उत्थे जाना तो बहुत दूर दी गल आ। एक औरत नाल मणिपुर दे विच की कुछ होया। लोग पापा के फोन पर वॉर रोक देते हैं लेकिन बांग्लादेशियों का फोन नंबर मोदी जी को मिल नहीं रहा है। बहुत सही। जदों वो सड़कां दे उत्ते रुलदी पई सी, सड़कां दे उत्ते प्रोटेस्ट करदी पई सी, मोदी जी नूं उदों कोई ख्याल नहीं आया। इनकी अपनी पार्टी परिवारवाद से कितनी पटी पड़ी है, ये लिस्ट वीडियो जरा पॉज करके देखिएगा। एक नवी गल जरूर सुनने को मिली है कि असीं लोकां दियां जिहड़ी हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, नमस्ते। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਿਰਫ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਪਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ? ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਆ, ਸੰਸਦ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਤਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ YouTube ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਸਾਰ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਗਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਤਹਿ ਲਾਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਦੇਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੇਖਣ वाली ਆ ਤੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण और रैली के भाषण में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण लेखक को पगार ही नहीं देते हैं और उसने रैली के भाषण की स्क्रिप्ट स्वतंत्रता दिवस पर पढ़ने के लिए चिपका दी। इस बार के भाषण में अलग केवल इतना था कि मोदी जी जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग कर रहे थे। मोदी कागज में देखकर पढ़ रहे थे, उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम नहीं था। अब चाहे आप इस एंगल से देख लीजिए, चाहे इस एंगल से देख लीजिए, टेलीप्रॉम्प्टर गायब था। जो अंतर था वो ये था कि इस बार लाल किले पर राहुल गांधी भी चढ़ गए थे। राहुल गांधी इस बार लाल किले के नीचे नहीं बैठे थे, बल्कि ऊपर वाली दीर्घा में बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी वो देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए थे। क्या बात। ये तस्वीर देखिए जरा, आगे बीजेपी के सब मंत्री लोग अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी पीछे खिलाड़ियों के बीच बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बीच होने लगी बारिश, बहुत सारे लोग रेनकोट खोजने लगे, लेकिन राहुल गांधी उसी मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। दोस्तों, पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी ने नया क्या क्या कहा वो आपको सुना देती हूँ, फिर हमेशा वाली पिपहरी वो कैसे बजाते हैं वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी। इस बार नया वो बांग्लादेश पर बोले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का डंका दुनिया भर में बजता है, लोग पापा के फोन पर वॉर रोक देते हैं, लेकिन बांग्लादेशियों का फोन नंबर मोदी जी को मिल नहीं रहा है। बहुत सही। एक फोन लगाकर वो बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रही हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये करने के लिए उनके मोबाइल में टावर आखिर क्यों नहीं आ रहा है, ये तो पापा ही जाने। इस बार मोदी ने 1 घंटे 37 मिनट का अपने 10 साल के इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया है। सारी रैलियों की स्क्रिप्ट उनको पहले से याद थी, इसे इतना लंबा बोलने में कोई दिक्कत उनको आई नहीं। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी लाल किले से गारंटीज दे रहे थे, याद है ना आपको? हाँ, मोदी का गारंटी है। मोदी का इस बार गारंटी है। गारंटी नाम की चिड़िया उनके भाषण से बिल्कुल उड़ चुकी थी, फुर्र हो गई थी। पिछली बार भारत देश के लोगों को परिवारजनों बोल रहे थे। एक हार के बाद फिर से 140 करोड़ देशवासियों पर आ गए। 140 करोड़। पिछली बार मोदी जी 1000 साल आगे की बात कर रहे थे, इस बार 2047 में विकसित भारत का लॉलीपॉप थमा रहे थे। लाल किले से उन्होंने बताया कि सबकी आय दोगुनी हो चुकी है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाल किले के भाषण में और रैली वाले भाषण में कोई खास अंतर दिखाई नहीं दिया। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग जब तक खुद का भला नहीं हो तब तक देश का भला नहीं सोचते हैं। कुछ लोगों को निराशा में डूबे हुए लोग बताया। सुनिए और जरा कमेंट में बताइएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी जी कह किसको रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो, ये खुद ही तो है, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी बंद निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है
तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है, और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने किन्ने हैवी हैवी लफ्ज जोड़ने की बोली है प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। कोरोना में जो लोग सवाल उठा रहे थे वो इनके लिए निराशावादी थे। जो लोग किसान कानूनों पर सवाल उठा रहे थे वो इनके लिए निराशावादी थे। जो भी चंदा लो और धंधा दो वाली स्कीम पर बोल रहे थे ना, वो सब इनके लिए निराशावादी थे। हाँ, वैसे लगा तो था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, मंगलसूत्र पर कांग्रेस आपकी भैंस खोलकर घर ले जाएगी, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने देश की लाज रख ली। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस बार लाल किले पर मौसम बढ़िया था, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए परिवारवाद पर भी बोले। पिछले 10 सालों से मोदी बोल ही रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी परिवारवाद से कितनी पटी पड़ी है, ये लिस्ट वीडियो जरा पॉज करके देखिएगा आप, और फिर लाल किले से परिवारवाद का उपदेश सुनिए। शुरू कीजिए। मेरे प्यारे क्या बात है देशवासियों, प्रज्ञा जी, क्या बात है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। इसके बाद मोदी जी ने लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का चुटकुला भी सुनाया। ये सुनकर जितने भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने चुनाव के समय अपनी पार्टी में ले लिया था ना, वो सब कंबल में मुंह डालकर हंस रहे होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप पूछेंगे कि इस बार के बैसाखियों वाले नरेंद्र मोदी में और पिछली बार के मेरी गारंटी वाले नरेंद्र मोदी में आखिर क्या अंतर है, तो मेरा उत्तर यह है दोस्तों कि मोदी अब तक खुद परमात्मा से बात करके अपना फैसला लोगों पर थोप देते थे, हर चीज को अपने दिमाग की उपज बताते थे, जहाज को खुद ही बादलों में छिपा देते थे। लेकिन इस बार लोगों की राय के बारे में बात करते नजर आए। मतलब जनता ने सबक सिखा दिया है। हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। पिछली बार मोदी जी गारंटी दे रहे थे और इस बार देश के 140 करोड़ देशवासियों को समृद्ध भारत बनाने के लिए लेक्चर दे रहे थे। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। मोदी जी ने बैंकिंग को अपनी सरकार का मील का पत्थर बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब से उनकी सरकार आई है तब से कितनी बैंकों पर ताला लग चुका है, कितने लोग भारत के बैंक लूट कर विदेश भाग गए। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंक के हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है।
भारत की साख बढ़ी है, युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुली हैं, नए मौके मिल रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को धीरे धीरे चलने का मूड नहीं बल्कि पूरा देश छलांग मारने के मूड में है। ये गोल्डन एरा है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। ये सब कुछ जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वो सब कुछ लोगों पर थोपते चले गए। मोदी जब ये सब बोल रहे थे तो अमित शाह जमीन की तरफ देख रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से है ये बंदा। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे कीमत चुकानी लड़ाई पड़ती है। जारी रहेगी। मामला थोड़ा सा रह गया। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर थोड़ा सा रो देते तो इसे गोदी मीडिया को बिल्कुल अच्छा सही। कंटेंट मिल जाता, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से रोने वाला सीन बहुत बार हो चुका है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए शायद इस बार रोने वाले सीन को डाला नहीं गया। लेकिन एक सीन रोने वाला होना तो चाहिए था। मोदी महिला अत्याचारों पर भी आज बोले, सुनिए। जो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारे राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मोदी के घर से कुछ ही दूरी पर जब विनेश फोगाट महिला रेसलर्स के साथ मोदी जी के सांसद के खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी तब मोदी जी कुछ बोले हों। जब बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने छात्रा के साथ तमंचे के दम पर रेप किया तब मोदी जी कुछ बोले हों। लेकिन दोस्तों, प्रवचन वही है जो दूसरों को दिया जा सके, है ना। खुद की बारी आए तो संसद में सिंगोल लेकर घूमते रहे और बाहर लड़कियां जूतों के नीचे रौंदी जाती रहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक रैली का भाषण ही लग रहा था। अगर बांग्लादेश वाली बात निकाल दी जाए तो किसी भी रैली का भाषण बजाकर ना काम चलाया जा सकता था। अब वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो गई। जैसे मैंने आपको पहले कहा, धूप थी नहीं, पब्लिक खूब जमाजम आई हुई थी, रैली वाला पूरा माहौल था, तो जो कुछ मोदी जी को याद आ रहा था वो सब बोलते चले गए। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे कहने वाले, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे कहने वाले, आप कहने लगे हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, ये सब कहने लगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैसाखियां डिसीजन थोपने से रोकती हैं। मोदी जी बोले सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो भैया ये बताओ, धर्म के आधार पर भेदभाव करता कौन है? अरे आप ही तो करते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव। आप अपने देश के 20% आबादी को घुसपैठिया बताते हैं। बिल्कुल सही, आप कहते हैं कि सही। हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। आप कपड़े देखकर पहचान लेते हैं भाई। सबसे बड़ा भेदभाव करने वाले तो आप खुद हैं। बिल्कुल सही। और अब आप खुद ही प्रवचन दे रहे हैं। वाह भाई वाह। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे,
किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे। ये ऐसे झूठ होनहार है, नौजवानों झूठ है, झूठ फ्रेश है। ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, ये चाहे नहीं विधानसभा हो में आए, सकता। लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, बीजेपी ऐसे के फ्रेश होते लोग हुए। राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए। राजनीति में फ्रेश ब्लड की बात कौन कर रहा है? आप देखिए जरा, जो प्रधानमंत्री एनडीए की तीसरी सरकार में भी अपना रेल मंत्री ना बदल पाए हो, रक्षा मंत्री ना बदल पाए हो, गृह मंत्री, सड़क मंत्री, ये सब आदि आदि ना बदल पाए हो, वही पुराने वाले सब रिपीट कर दिए हो, जिस प्रधानमंत्री की पार्टी देश की 20% मुस्लिम आबादी को टिकट ही नहीं देती है, वो फ्रेश ब्लड की बात करती है। मोदी जी अमित शाह को हटाकर आप किसी फ्रेश, तेज तर्रार ब्लड को गृह मंत्री बनाइए ना। बनाएंगे क्या? प्रवचन ही प्रवचन है भाई, प्रवचन ही प्रवचन है, क्या बात है। बाबा के प्रवचन और पापा के भाषण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं सुनाई दे रहा है। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। विश्व गुरु के लिए यह बिल्कुल शर्म की बात है। लेकिन डिजाइनर प्रधानमंत्री अब डिजाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हाँ, तो कुल मिलाकर 15 अगस्त का दिन गोदी मीडिया के लिए मोदी महिमा मंडन का दिन है, मोदी के लिए भाषण देने का दिन है, आम आदमी के लिए भाषण सुनने का दिन है। और मोदी जी के राइटर से देश की जनता का विनम्र निवेदन है कि भैया मोदी जी की कैसेट पिछले 10 सालों से जिन मुद्दों पर फंसी हुई है ना, या तो फिर आप वो मुद्दे हल करवा दीजिए, और अगर ये आपके बस का नहीं है तो स्क्रिप्ट कुछ छोटी लिखा करिए भाई। रैली के भाषण और लाल किले के भाषण में अंतर समझिए। प्रधानमंत्री कार्यालय आपको मोटी रकम कॉपी पेस्ट करने के लिए तो देता नहीं होगा ना। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगी क्योंकि आप आजाद हैं, मन करेगा तो कर ही लेंगे, कर ही लीजिएगा। नमस्कार। राम राम जी, राम राम। हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।